Hello students, today we are going to start a new topic, that is integration. First question arises, what do we mean by the integration? And the answer is quite simple. The reverse process of differentiation is known as integration, just as the reverse process of the differentiation. For example, if we have given a function y is equals to sin x plus 2, then the derivative of y with respect to x is, derivative of sin x is cos x and derivative of 2 is 0. And if we integrate this function cos x, we get this result. Integration of cos x dx is equals to sin x plus c. Here c is the constant of integration. This example shows that integration is the reverse process of differentiation. We also know that the derivative of log x, derivative of log x is 1 by x, and the integration of 1 by x is log x plus c. This is the sign of integration and this is the constant of integration. Now next question, why we use this constant of integration? What is this? Okay, now we move to the answer of this question. What do we mean by constant of integration? Suppose we have two functions. First is y equals to e to the power x plus 1 and second one is y equals to e to the power x plus 2. Now if we differentiate first function, that means y equals to e to the power x plus 1 with respect to the variable x, then what will we get? The derivative of e to the power x is e to the power x and derivative of 1 is 0. That means result is e to the power x. Now move for the next function, y equals to e to the power x plus 2. If we differentiate this function, then what will we get? Again the derivative of e to the power x is e to the power x plus derivative of 2 is 0 and the result is again e to the power x. That means in both the cases we get the single answer, that means e to the power x. दोनों ही क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करने पर, दोनों ही फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने पर आंसर e टू द पावर x मिल रहा है. अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो हमें ये आंसर मिलना चाहिए, इसे इंटीग्रेट करते हैं तो ये आंसर मिलना चाहिए. और आप इन आंसर्स को देखो, दोनों सेम फंक्शन है. अगर दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये टू डिफरेंट आंसर्स मिलने चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन है इंटीग्रेशन की कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. मीन्स इसे डिफरेंशिएट करने पर ये रिजल्ट मिलना चाहिए, इसे डिफरेंशिएट करने पर ये रिजल्ट मिलना चाहिए. इसी वजह से जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे हमें e टू द पावर x तो मिल जाएगा, +2 मिलेगा, +1 मिलेगा, +8 मिलेगा, क्या मिलेगा? इसीलिए हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इसका रीज़न है, अगर हमारे फंक्शन के अंदर कांस्टेंट है तो उसको डिफरेंशिएट करने पर तो 0 हो जाएगा, लेकिन जब हम इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कांस्टेंट टर्म नहीं मिलेगी. तो इसी कांस्टेंट टर्म का पता लगाने के लिए या इसी कांस्टेंट टर्म के लिए हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इज इट क्लियर? नाउ मूव टू द बेसिक इंटीग्रेशंस which are directly based on the formulas. What is the integration of x square? As we know that the integration of x to the power n dx is equals to x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. पावर को 1 से इंक्रीज करना और जो टर्म पावर में मिल रही है वही डिनोमिनेटर में होनी चाहिए. पावर को 1 से इंक्रीज करना x टू द पावर 3 और जो टर्म पावर में मिल रही है वही डिनोमिनेटर में x टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस c. सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 7 dx इज इक्वल्स टू पावर को 1 से इंक्रीज करना 8 अपॉन 8 प्लस c. इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -4, पावर को 1 से इंक्रीज करना, -4 को 1 से इंक्रीज करेंगे तो x टू द पावर -3 अपॉन -3 प्लस c. आसानी से इन इंटीग्रेशंस को किया जाता है जो डायरेक्ट
फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन x। डिवाइड का कोई फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन के अंदर, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है तो हम उसे सेपरेट करके डिफरेंट टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिवाइड का फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन के अंदर, तो हमें टर्म्स को सेपरेट करना होगा। ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ए एक्स, बी एक्स अपॉन एक्स ओनली 1, बी कॉन्स्टेंट टर्म है, पीछे इंटीग्रेशन क्या रह जाएगा 1। नाउ सी अपॉन 1/x dx। हमने कांस्टेंट टर्म बाहर शिफ्ट कर लिया और वेरिएबल को केवल इंटीग्रेशन के साइन के अंदर रखा है, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमें करना नहीं है। ए एज इट इज रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, पावर को 1 से इंक्रीज करना है, जस्ट अभी हमने पहले किया था। पावर को 1 से इंक्रीज करने पर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। बी एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन, 1 मीन्स एक्स टू द पावर 0, और इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो पावर को 1 से इंक्रीज करना मीन्स एक्स की पावर 1 अपॉन 1, एक्स की पावर 1 अपॉन 1 प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, नॉर्मली हम c यूज़ करते हैं, c यहाँ पे ऑलरेडी सिंबल में यूज़ हो चुका है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ कर रखा है k। ये कंप्लीट हो गया है इस फंक्शन का इंटीग्रेशन। कभी भी डिनोमिनेटर आपको गिवन हो, सिंगल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने की ट्राई करनी चाहिए हमें। यहाँ पर ऑलरेडी सिंगल डिनोमिनेटर है तो हम इससे क्या कर लेंगे सेपरेट, क्योंकि डिवाइड का कोई फॉर्मूला हमारे पास इंटीग्रेशन में अवेलेबल नहीं है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। x to the power 4 plus 1 divided by x square plus 1, this is the function and we have to integrate this function with respect to variable x। इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। फिर वही चीज़ अगर हम सेपरेट कर लेते हैं तो सेपरेट करने पर टर्म हो जाएगी x to the power 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे? इसे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका तो डायरेक्ट फार्मूला है tan इनवर्स x, लेकिन इसका क्या करेंगे हम? तो हमें कैसे भी करके इस टर्म को कैंसिल करना है। अगर ये टर्म कैंसिल हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो हम इसे आसानी से सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो हम ये करते हैं, यहाँ पर -1 + 1 कर देते हैं, क्योंकि -1 और +1 करने पर हम इसके फैक्टर्स कर पाएंगे। क्लियर? x to the power 4 - 1 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x स्क्वायर - 1 x स्क्वायर प्लस 1। तो हम यहाँ तक सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ तक x to the power 4 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 + 1 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगेन x to the power 4 - 1 के फैक्टर्स x स्क्वायर -1 और नेक्स्ट x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो आइडेंटिटी है उसका यूज़ करके हमने इसके फैक्टर्स कर रखे हैं और इसके फैक्टर्स में ये मिल रहे हैं। सेकेंड इंटीग्रेशन एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो हमें यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर -1 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर x³ अपॉन 3 नेगेटिव साइन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 x कंप्लीट हो गया इंटीग्रेशन, एडिशन का साइन 2 एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस c। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन। इस टर्म को हमें इंटीग्रेट करना है और टर्म है √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का भी हमारे पास में कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं अवेलेबल है, तो पहले हम इसे एक्सपेंड कर देंगे, देखते हैं एक्सपेंड करने पर क्या टर्म मिल रही है। यहाँ परेशानी क्या आ रही है? हम √x को तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, अगर हमें √x का इंटीग्रेशन करना है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, √x का इंटीग्रेशन आसानी से अवेलेबल है, हम √x को आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर इसे हम आसानी से इंटीग्रेट नहीं कर सकते, कोई फॉर्मूला डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है। तो हम पहले इसे एक्सपेंड कर लेते ताकि ये स्क्वायर की परेशानी हट जाए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करने पर ओनली 2 मिलेगा। अब देखिए टर्म्स बिल्कुल सिंपल सी हो चुकी है। फर्स्ट फंक्शन x, इसे अलग से इंटीग्रेट करना है, इसे अलग से इंटीग्रेट करना है, इसे अलग से इंटीग्रेट करना है। 3 डिफरेंट फंक्शंस हैं, 3 डिफरेंट फंक्शंस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन है, मीन्स टोटल 3 टर्म्स अवेलेबल है हमारे पास। तो हम 3 टर्म्स को सेपरेट इंटीग्रेट कर देंगे। x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2
plus as it is. Integration of 1 by x is log x plus 2 as it is, and difference integration of 1 is x. x का इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन, 2 कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, 1 रहेगा पीछे और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाए x. 3 का इंटीग्रेशन 3x. इंटीग्रेशन ऑफ 5x. इंटीग्रेशन ऑफ 7x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ द लास्ट question of this video. In this video we have to integrate a series whose first term is 1, second term is x, next x square upon 2 plus x cube upon 6 plus x to the power 4 upon 24. अगर अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ये जो टर्म है ये फैक्टोरियल 3 को रिप्रेजेंट कर रही है, 24 फैक्टोरियल 4 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब अगर अच्छे से ऑब्जर्व किया जाए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ये सीरीज बन रही है e टू द पावर x की. मीन्स हमारा क्वेश्चन केवल इतना सा है, इंटीग्रेट e टू द पावर x with respect to variable x, and the integration of e to the power x is e to the power x. सिंपल सा इंटीग्रेशन सेम होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.